Hello, my dear students. How are you all? I am Dr. Neha, welcoming you once again to the marathon that we are running about the textual study of our English books, Flamingo and Vistas. In this video lecture, I am going to talk about the poem Keeping Quiet, one of the most meaningful and insightful poems, keeping in view the rat race we human as species running to get money, to earn money, to hoard money, that we are working 24/7 and we do not have time even to do self introspection and to, for once, associate ourselves with our real self. What we do, हम क्या करते हैं, हम भी, आप भी, और human kind as a species क्या कर रहे हैं? We are running a rat race. What kind of rat race? To save money, to earn money, and to spend money also. That's our main agenda of life. But इस journey में हम पीस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को। एक बार के लिए जब हम, हमारे पेरेंट्स या somebody in our household gets overwhelmed, अरे मैं थक चुका हूँ, what they run behind another things like meditation, like art of living. They want someone to help them, to guide them. बट पेब्लो नेरूडा की ये जो पोम है कीपिंग क्वाइट, दैट विल गिव यू द सिंपलेस्ट ऑफ लेसन्स वेयर यू कैन एक्चुअली गेन peace, where you can actually self introspect. One of my most favorite poems. अगर मेरे स्टूडेंट्स इस पोम को एक बार रीड करते हैं तो keeping a view at the poem, they might feel that it is very lengthy poem, it must be difficult, but no, ऐसा नहीं है। एक बार इस पोम को खुद रीड करके दीजिए, टेक्सचुअल एनालिसिस मैं करा रही हूँ साथ में, यू विल गेट टू नो हाउ इजी अ पोएट Pablo Neruda is and how easy a poem he has written. The choice of words are easy, the meaning is easy. He is just asking you to be quiet for some time so that you will be able to attain your real self. यहाँ पर मैं कुछ mature words का use करने वाली हूँ, जैसे कि introspection, attaining the self. वो एक अच्छा आउटलुक देंगी आपके आंसर को, एक चॉइस ऑफ वर्ड अच्छा होगा, एक आइडिया को कन्वे करने का वे अच्छा होगा. So without much ado, let us get to the textual analysis of the easiest poem of our class, Keeping Quiet. This poem has been written by Pablo Neruda. Pablo Neruda is a Nobel awardee, Nobel laureate. इन्हें Nobel Prize मिला है 1970s में. ये simple बात करते हैं, meaningful बात करते हैं, simple language में बात करते हैं. Pablo Neruda, who has written My Mother at 66, tell me in the comment section below. मैं spelling जरूर check करने वाली हूँ कि किस poet ने वो poem लिखी है. Now come to Keeping Quiet. Keep your books right in front of you and pen and paper also. Now we will count to 12 and we will all keep still. यहाँ पर आप देखिए 12 का मीनिंग क्या है. Now we will count up to 12 and we will all keep still. Poet यहाँ पर कह रहे हैं I will count up to 12. ये journally भी होता है. When you feel angry, this is one of the ways that you can calm yourself down. आप 12 तक काउंट करते हैं, आपका एंगर शांत हो जाता है. You get another mind to think what to say that is right, and you don't say anything in really hustle way. Now we will count to 12. 12 मैं काउंट करूंगा. 12 आवर्स अ डे होते हैं, 12 मंथ्स अ ईयर होते हैं. सो ही इज रिक्वेस्टिंग टू डू द मिनिमलिस्टिक थिंग दैट यू कैन डू. काउंट अप टू 12 एंड वी विल, ना आप लोग नहीं, हम सब, वी विल ऑल कीप स्टिल. हम सब स्टिल रहेंगे. स्टिल वर्ड यहाँ पर पूरे पोम के सेंट्रल आइडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टिल रहना, स्टिलनेस पूरे पोम का एक थीम है.
सो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार अर्थ के लिए, अपनी धरती के लिए, लेट अस ऑल कीप स्टिल, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, बिकॉज वी एज ह्यूमन बींग्स कम फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज, डाइवर्स, वी हैव डिफरेंट लिंग्विस्टिक पैटर्न्स, हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बात मत कीजिए. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. अरे 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए, थम जाइए जहां पर भी आप हैं. क्या रीड किया? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. यहां पर आर्म्स के भी बेटा 2 मीनिंग है. आर्म्स क्या है? फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप ना करें. मैं 12 तक काउंट करूंगा. फॉर द सेक ऑफ आवर अर्थ शांत रहिए. एक आर्म का यहाँ पर मीनिंग है वेपन्स. हम वेपन्स के लिए आर्म्स वर्ड यूज करते हैं. तो वेपन्स, लेट्स नॉट एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ वॉर. फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, वेपन्स को रख देना है. Let's not move our arms so much. कोई physical activity. So in the very beginning stanza of the poem, Pablo Neruda is requesting you, is asking you to keep still. Still is the main, stillness is the main central idea of the poem. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. ये एक वंडरफुल मोमेंट होगा, एक बहुत ही ज्यादा एक्सोटिक मोमेंट होगा जहां पर हम सब शांत होंगे. विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा. यू माइट नॉट बी रशिंग टू स्कूल, यू माइट नॉट बी रनिंग टू ट्यूशंस एंड वी माइट नॉट बी रिकॉर्डिंग वीडियोस. दैट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. वी विल बी एट पीस विद आवरसेल्व्स. विदाउट इंजन्स, ट्रेन्स रन नहीं करेंगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम सबको बाइंड करेगी ये स्टिलनेस कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट रिकॉल दैट टाइम ऑफ जून. जब आप अपने नानी हाउस जाते हैं तो वहां पर टाइम रुक सा जाता है. यू आर नॉट एंगेज इन योर बुक्स, you are doing activities but fun activities. That's the sort of relaxation that you have in whole of your year. So that's the way Pablo Neruda is saying that rather than running and being overwhelmed by the excessive work that you are doing, let's be quiet for once. एक बार के लिए quiet हो जाएं. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. SNS एलिट्रेशन यहाँ पर यूज किया गया है. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सडन एक अजीब सी ही शांति होगी, एक अजीब सी ही स्टिलनेस होगी, एक अजीब सी टुगेदरनेस होगी. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन जिनका काम है फिश को हंट करना, फिश को कलेक्ट करना, उसे सेल करना. सो दे आर डूइंग अ वेरी टेडियस टास्क, कलेक्टिंग अ लिविंग बीइंग. तो यहाँ पर फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म. फॉर द टाइम बीइंग हम नेचर को हार्म करना छोड़ देंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. यू माइट नो, जो सॉल्ट को कलेक्ट करते हैं उनके हैंड्स एंड फीट, दे गेट सोर, दे आर so hurt. So the man who is doing this work for the sake of money will at least have time to look at his hands, at what kind of hurt he has done to his hands. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, यहाँ पर green wars का मीनिंग क्या है? green wars का यहाँ पर मीनिंग है the people who are running a war against nature. war against nature हम कैसे कर रहे हैं बेटा? फैक्ट्रीज से कर रहे हैं, हंटिंग से कर रहे हैं, फैक्ट्रीज से कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन से कर रहे हैं. सो फॉर द टाइम बीइंग अगर हम लोग स्टिल होंगे, ट्रैफिक स्टिल होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा. फैक्ट्रीज बंद होंगी, फैक्ट्रीज का वेस्ट वाटर एंड सी में नहीं मिलाया जाएगा. सो इंडीड वट एवर एक्ट वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू पेब्लो नेरूडा इज अ ग्रीन वॉर दैट वी आर रनिंग, अ वॉर अगेंस्ट नेचर.
Perhaps those who prepare green wars, war with gas, अपने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से, वॉर से भी हमें ग्रीन वॉर करते हैं, हम हार्म करते हैं खुद को. वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, हम एक ऐसी लड़ाई कर रहे हैं जिसमें किसी ने नहीं बचना है. जैसे कि हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, किसने बचना है? किसी ने नहीं बचना है. सो व्हाट एक्ट्स वी आर डूइंग इन द बेनिफिट ऑफ दैट? क्योंकि हम डिप्लीशन उतना कर चुके हैं. अरे अब सीएनजी चलाने से, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल चलाने से नॉट मच थिंग्स विल बी रिडीम्ड. अब कुछ भी रिज्यूम पहले जैसा नहीं होगा. जो ताजी हवा नेचर हमें मिलता था वो अब नहीं मिलता है. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, very important line of the poems. According to Pablo Neruda, the people who are running great green wars, they are running a war. They are doing a war in which there will be nobody will be victorious. जीत किसी की नहीं होनी है, सबकी हार ही होनी है. Would put on clean, वो लोग जो consistently wars में involved हैं, their clothes are stained, जैसे कि हम अपनी पोम लॉ स्प्रिंग में भी पढ़ने वाले हैं. The people who are making bangles, जो बना रहे हैं, their eyes are adjusted to the darkness and their world is but one big dark room. उनका वो world है, तो they will at least have time to go into sunshine. They will at least have time to put on good clothes, who are working in factories in the dark suit, जो कलेक्ट करते हैं फैक्ट्रीज का सूट SOO2. They will at least have time to put on clean clothes and walk about with their brothers. अपने ब्रदर्स, भाईजनों के साथ उनको एक वॉक करने का मौका मिलेगा. इन द शेड, वो भी शेड में आकर के बैठ सकेंगे, डूइंग नथिंग. लेबर क्लास, माइनर्स जो माइनिंग कर रहे हैं इन द स्कॉर्चिंग हीट, दे विल एटलीस्ट हैव टाइम टू स्पेंड विद देयर ब्रदर्स, टू एटलीस्ट सिट इन shade of nature for once. What I want should not be confused. Now he is expressing his idea even more clearly. With stillness, I do not mean that we should all will die or one black death will come, black hole will come and we'll go into that. No. He is just asking you people, asking all of us to stand still for a moment so that you can enjoy, you can self introspect, you can attain your real self. What I want should not be confused with total inactivity means death. I do not mean death. I mean life जैसी है वैसी चलती रहेगी. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no. मैं यहाँ पर कोई भी ट्रक नहीं चाहता हूँ that you confuse my idea of stillness with the idea of death. No. If we were not so single minded, क्योंकि ये पोम मैंने क्यों लिखा है, ये आइडिया मैंने क्यों दिया है, क्योंकि हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स वी हैव बीन सिंगल माइंडेड अबाउट रनिंग एंड रनिंग. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, हम डे में सारा दिन काम करते हैं just to earn money, just to spend money, but for once अगर हम कुछ ना करें, कुछ वक्त अपने साथ स्पेंड करें, for once could do nothing, perhaps a huge sigh, सिर्फ थोड़ी देर के लिए शांति बना ले. Perhaps a huge silence might interrupt, because at the end of the day हर मेंबर जो अर्न कर रहा है, जो लगा हुआ है रैट रेस में, एक दिन तो वो ओवरवेल्म हो ही जाता है. What I am doing, for whom I am doing, where am I really, मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, what I really aspire, मैं चाहता क्या हूँ. तो पोएट इस पोएम के थ्रू अर्ज कर रहा है, अरे थम जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो. वो किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है, ना ही वर्बल ना ही नॉन वर्बल. ही इज जस्ट आस्किंग यू टू बी स्टिल एंड विद दैट स्टिलनेस फॉर द टाइम बीइंग. जो रैट रेस, जो एक रेस आप कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं पैसे के पीछे, उससे आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा. यू विल बी एटलीस्ट एबल टू एंजॉय द फॉर्म ऑफ स्पीशीज यू आर, human species. You have two hands, you have two legs, and with that you are doing so much. but कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना जरूरी है.
नेवर हमारे लिए प्राइम सैडनेस क्या होती है कि हम खुद को ही समझ नहीं पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू अटेन आवर कीपिंग क्वाइट का मेन आइडिया क्या है, इंट्रोस्पेक्शन का है। आप खुद रुकिए, सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और उसके बाद एटलीस्ट जो आपकी सैडनेस है दैट यू आर नॉट एबल टू अटेन योर रियल सेल्फ, you will be able to attain your real self if you are able to keep quiet. attain the self पेपर में यूज किया जा सकता है, इंट्रोस्पेक्ट वर्ड पेपर में यूज किया जा सकता है। might interrupt this sadness of never understanding ourselves and or threatening ourselves with death because we are so much up to for save for our future। हम फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर आएगा तो हम उसमें जिएंगे, बट वी ऑलवेज fear ourselves with death, you might die any day, so that is why you are saving and saving, and that is why he says that for once, for the sake of earth, एक बार के लिए शांत हो जाइए, स्टिल हो जाइए। परहैप्स द अर्थ, हमें अर्थ भी तो यही सिखाती है, विंटर में एवरीथिंग सीम्स डेड, एवरीथिंग सीम्स स्टिल, यू डोंट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ योर क्विल्ट। फॉग देखना ही आपके लिए सफिशिएंट होता है, फॉग में जाने की हिम्मत हम लोग नहीं करते हैं। व्हेन एवरीथिंग सीम्स सो क्वाइट, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एंड यही स्ट्रीट, यही फॉग की वजह से यू फील स्टिल, यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट। लेकिन जब स्प्रिंग आता है, समर आता है, यू डोंट फील लाइक सिटिंग इनसाइड। जैसे कि ये कह रहे हैं, perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12, you keep quiet and I will go. अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, you all will keep quiet and I will go. Poet has done his job, he has given the message of keeping quiet, of introspection and of attaining the self. We are running the rat race. अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप इस पोम के लिए यूज कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट आप यूज कर सकते हैं, अ जर्नी टू अटेन द सेल्फ आप यूज कर सकते हैं, ओवरवेल्म आप यूज कर सकते हैं, ओवर स्टिलनेस आप यूज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे टाइप के वर्ड्स, मेडिटेशन आप यूज कर सकते हैं, आर्म्स वर्ड आप पोएट में से यूज कर सकते हैं। सो विद दैट नोट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द पोम, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट पोम सो फार। माय मदर एट 66, मैंने क्वेश्चन पूछा है, हु इज अ पोएट of Mother at 66? Let me know in the comment section below. Thank you. Have a nice day.